Very good morning to all of you. Uh, First of all, we start with the two, three more important notice that from this week, maybe on Saturday, as we have a Google Meet lectures, two, three Google Meet lectures are there on Saturday. So on that day, I am planning for practicals, for online practicals. Right now, I am just planning for the practicals. What is the actual plan? That I don't know. Today I will talk with father also. 90% possibility of practicals, ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स होंगे. आप लोगों को क्या करना है घर पे बैठ के, वो मैं आप लोगों को 2-3 दिन के अंदर बता दूंगा. फर्स्ट थिंग इज दिस रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स. आपको जर्नल कब लेनी है, कौन सी लेनी है, दैट आई विल टेल यू लेटर. डोंट बी हरी, बट still wait for tomorrow and day after tomorrow. Up to Thursday I will tell you all the things. Second thing is regarding your class test exam. From 28th June you will have a class test. For a week we have total 5 subjects. Therefore the 5 subjects exam is there. What is the timetable, what is the criteria, what is the pattern, how much marks, that you will also know later within a 2-3 days, because today is 15th June, and on 28th June test will be there. That is 100% sure. But what is the plan, that you will know later. So be prepared about that, okay? Because as you give examinations, online examinations in 11th, but sometimes may be different pattern, so wait and watch for that. Third most important thing, you have to prepare your class subject wise notebook. अभी तक आप लोगों ने कुछ भी बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, तो आप लोगों को बनानी पड़ेगी. That is strictly notice given by the father. All the students from KG to 12, all students bring a copy, bring a notebook for a subject. And what we do and what we will do, that all the things you have to write in your notebook with sums, with examples, particularly in chemistry. So these 3 things are very most important, and those who are not watching, those who are watching these videos, tell your friends that be present in online and live lectures also, and watch these videos.
because in these videos and in online lectures we are announcing this kind of informations. So tell your friends, those who are not watching any videos or not attending any kind of online lectures, they must have to attend all the things which provided by the school. Okay, it is clear, I hope. If you have any doubt regarding these 3 points, you can call or message me. So these 3 things are very most important. Yesterday we completed the elevation in a boiling point topic. We did 2-3 sums. Okay, already in online lecture we also did some on the basis of an elevation on boiling point. Today we are going, as I told you that today we will directly start osmotic pressure, but I think that those who are not attending the online, so for that kind of we are starting depression in a freezing point right now. Depression in freezing point. As the elevation in a boiling point means increase in the boiling point when you add a non-volatile solute in the volatile solvent. Similarly, when you add a non-volatile solute in a volatile solvent, then what happens? We know now, very perfectly we know that vapors obtained are only due to solvent A. Therefore, the vapor pressure is decreases. तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा. क्या होगा? On adding a non-volatile solute in volatile solvent, vapor pressure decreases of solution. Now vapor pressure decreases, therefore boiling point increases, but depression का मीनिंग होता है डिक्रीज होना. तो therefore depression in a freezing point, मतलब when you add non-volatile solute in volatile solvent, depression in a freezing point decreases. And last time जो हमने बॉइलिंग पॉइंट का नया डेफिनेशन सीखा था, सिमिलरली हियर वी आल्सो लर्न अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट. तो उसी को हम लोग डायरेक्टली ग्राफ से समझ लेते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया. टेक्स्ट बुक के अंदर ग्राफ दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? वेपर प्रेशर एंड यहाँ पे हम लोग लेंगे टेम्परेचर. बहुत सिंपल एक ग्राफ है. तो जब आप लोग प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हो वेपर प्रेशर का, तो वो कुछ ऐसा मिला था. दिस इज अवर प्योर सॉल्वेंट एंड इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म. फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड. तो जब हमने प्योर सॉल्वेंट व्हेन इट इज इन अ लिक्विड फॉर्म, वी ड्रू अ ग्राफ of vapor pressure, it becomes like this. When you add non-volatile solute, then boiling point increases.
तो कुछ ऐसा ग्राफ मिला। दिस इज ग्राफ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिक्विड सॉल्यूशन। Now what is the meaning of a freezing point? Here we are writing new definition of a freezing point. Write down, it is a temperature at which freezing point नहीं, at which vapor pressure of a liquid solution, और liquid ऐसा भी लिखो तो भी चले, liquid solution becomes equal to vapor pressure of a solid। तो पहले इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे सॉलिड के अंदर, आफ्टर दैट यू विल मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड। सिंपल। तो जब हमने वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो कुछ ऐसा मिला। जस्ट मैंने ऐसा मिला ग्राफ। इसको थोड़ा और सिस्टमेटिकली ड्रॉ करो। ये परफेक्ट है। तो अब इन दोनों, ये क्या है सॉलिड, ये ब्लू लाइन से है वो क्या है सॉलिड का ग्राफ। अब इन दोनों को मैच करना है तो यहाँ पे कर दे मैच, ये हो गया, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, इसको हमने नीचे टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जो टेम्परेचर मिला उसको नाम दिया गया TF0। What is the meaning of a TF0? It is freezing point of pure solvent। फिर जब हमने इसको सॉल्यूशन को खींचा तो वो कुछ ऐसा मिला। इसको भी टेम्परेचर के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको क्या नाम दिया TF, और ये जो गैप मिला उसे क्या नाम दिया गया डेल्टा TF। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल क्या हुआ डेल्टा TF। फॉर्मूला क्या मिला, तो आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो TF0 माइनस TF। अब वहां पे TB माइनस TB0 था, यहाँ पे TF0 माइनस TF है। नोट डाउन करते रहना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा TF? अगेन आई रिपीट, इट इज डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। Then what is TF0? It is freezing point of pure solvent. And what is TF? It is freezing point of solution। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके ऊपर से हमें मिला डेल्टा TF is directly proportional to the molality and delta TF is equal to AF into M। What is the KF? It is constant for depression in a freezing point। और एक बात याद रखना, KB and KF always related to solvent होते हैं। ओके, सॉल्यूट के लिए KF KB कभी भी डिफाइन नहीं, ओनली फॉर सॉल्वेंट। एंड मोलारिटी आप लोगों को पता। KF को क्या नाम दिया गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। लिखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। So this is the concept of depression in a freezing point। You write all the things। चलो अब ये कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते समझ करते हैं। एक
अरे ये तो मेरा रुमाल था। बाजू में फैन भी है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी एडजस्ट करना। वी आर डूइंग दिस हार्ड वर्क फॉर यू ऑल, ऑब्वियस है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी करोगे। चलो अब मेरे पास आ गई है मॉडर्न एबीसी। सो लेट अस स्टार्ट। 1 2 सम्स किए जाएं तो मज़ा आ जाए थोड़ा बहुत। चलो एक सम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। चलो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram is mixed with 600 gram of water calculate freezing point depression, calculate मैं सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेल्टा टी एफ फाइंड करना एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब सेकंड हमें फाइंड करना है टी एफ। ओके, दिस टू पैरामीटर्स वी हैव टू फाइंड एंड टी एफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। This is always constant for water. Okay? चलो अब हमें क्या दिया हुआ है पहले तो वो देखो। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। अरे फॉर्मूला क्या होता है? CH2 CH2 OH एंड OH। दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो C2H4O2। डन। तो अब यहाँ पे हमें दिया गया है नंबर 1। आंसर को हम लोग स्टार्ट करें। अगर आप लोगों को आता हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें मास ऑफ ए सॉल्यूट WB दैट इज गिवन 45 ग्राम, WA गिवन इज 600 ग्राम, और कुछ भी हमें नहीं दिया गया। मैं एक और बात चेक कर लूँ। यस, और कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा डब्ल्यू ए इंटू एम ए, अरे एम बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसके अंदर चेक करो तो KF इज गिवन 1.86, WB 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA 600 ग्राम। ओ ये सब कुछ दिया हुआ है सॉल्यूट। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 24 प्लस 4 एंड ये होगा 32। तो 2 + 4 6 + 4 0 1 3 7 एंड 3 100। अरे 100 कहाँ से होगा? 3 3 4 5 6 60 होगा, सॉरी 60। चलो कैलकुलेट करो यार। 60 नहीं 62 होगा, 62 कैसे होगा? 24 जो जमा दिया फॉर्मूला ग्लाइकॉल, यहाँ पे 60 होगा, 60 फॉर्मूला इज 100% राइट। अरे कहाँ सर? यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 62 होगा, सॉरी 2 2 एंड 2 6
चलो तो अब यहाँ से आप लोगों को आंसर मिलता है 2.25 केल्विन। ओके, टेम्परेचर यहाँ पर ऑलवेज केल्विन है। फिर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये फाइंड करना है। टी एफ नॉट क्या होगा? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको क्या करो? कन्वर्ट करो केल्विन के अंदर, तो 273 केल्विन। तो 2.25 केल्विन इज इक्वल टू 273 माइनस टी एफ। तो यहाँ से आंसर क्या मिला? चेक करो, 270.9 केल्विन। ये आप लोगों का हो जाएगा आंसर। चेक करो, चलो आगे बढ़ा जाए। एक लास्ट सम ले लेते हैं। एडिशन ऑफ ए 0.4, मैं डायरेक्ट डेटा लिख रहा हूँ। WB इज इक्वल टू 0.643 ग्राम। एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम of a compound to 50 ml of benzene. Oh, volume of benzene, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट होगा क्योंकि वॉल्यूम दिया गया है 50 ml। डेंसिटी दी गई है। ओके, ऑब्वियस है, डेंसिटी देनी पड़ेगी। मास कैलकुलेट करना है 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। इट्स अ डेंसिटी। Lowers the freezing point from 5.51 degree Celsius to 5.03 degree Celsius। डिग्री सेल्सियस में है। If Kf for benzene is 5.12 degree Celsius into kilogram per mole, calculate molar mass of compound MB हमें फाइंड करना। ये अननोन सॉल्यूट है हमारे लिए और MB हमें फाइंड करना। वी हैव फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF and delta TF is equal to KF into M. Freezing point lowers from 5.51 to 5.03। क्या मीनिंग हुआ इसका? क्या ये डेल्टा TF की वैल्यू है? यस। क्या ये डेल्टा TF की वैल्यू है? ऑब्वियस है। 51 माइनस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.48 डिग्री सेल्सियस। तो अब तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर मिल जाएगा। देखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू W। ये हमारे पास आ गया 0.48। हाँ, एक आप लोगों को ये वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डेंसिटी दी गई। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 0.879 इंटू 50, यहाँ से आप लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा और वो मिलेगा 43.95 ग्राम। चलो, KF की वैल्यू 5.12, WB 0.643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ, सॉरी ये B होगा। ये हमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास और ये हुआ 43.95
95। यहाँ से आप लोग MB को कैलकुलेट करो, आंसर क्या मिल रहा है 156 ग्राम अप्रॉक्स। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इस लेक्चर को करें कंप्लीट। चलो, तो 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। नंबर 1 रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स, नंबर 2 क्लास टेस्ट फ्रॉम 28th June, थर्ड नोटबुक सबमिशन। थैंक यू वेरी मच।